So we are starting with our next chapter, chapter number 4, partial differential equations of first order. So when a differential equation contains one or more partial derivatives of an unknown function of two or more variables, independent variables, then it is called a partial differential equation. We consider generally x and y as independent variables and z as dependent variables. So you will say that z is a function of x and y. Then partial derivatives are denoted by partial derivative of z with respect to x, with respect to y, then double derivative of z with respect to x, then double derivative of z with respect to y, and then double derivative of z with respect to x and y. उसके बाद इन्होंने ये जो नोटेशंस दी हैं, दे आर सेम फॉर विच सिंबल्स पी क्यू आर टी एस रिस्पेक्टिवली विल बी यूज्ड. सो ये आपने याद रखनी, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x को p से, with respect to y small q, then double derivative with respect to x r, double derivative with respect to y t, and double derivative with respect to x y को s से denote करेंगे, and they are standards. Then the order of a partial differential equation is defined as the order of the highest partial derivative occurring in it, and degree is defined as exponent of highest order partial derivative. So जैसे कि आप देखोगे इसमें these are all first order and first degree. This is also first order first degree. This is also first order first degree. Now this is second order differential equation क्योंकि double derivative है z का, लेकिन इन सब की डिग्री क्योंकि 1 है, so second order but first degree. This is also first order and first degree. So order and degree एक तो आपको clear होना चाहिए. Then secondly, linear and non-linear क्या होता है? Partial differential equation is said to be linear if the dependent variable क्या लिया था हमने, z, and its partial derivatives occur only in first degree and are not multiplied together in the differential equation. Otherwise the equation is called a non-linear. So जैसे कि अब ये देखो, दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें देखो z जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये करली z बाय करली x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे भी आपका z स्क्वायर करली z बाय करली x के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे फिर आपका z मल्टीप्लाई हो गया करली z बाय करली x के साथ, so it is again a non-linear differential equation. So there are some more examples. अब आप example number 6 में अगर देखोगे तो second order differential equation है, first degree है, and it is a linear differential equation. Whereas 7th में first order है but करली z by करली x की डिग्री क्योंकि 2 है तो second degree हो गई, and क्योंकि z इसके साथ multiplied है, so it is a non-linear differential equation. Now first of all we will see how to form a differential equation. In general, there are two ways for derivation of partial differential equation: by eliminating the arbitrary constants from the given relation between the variables, and by eliminating arbitrary functions from the given relation between variables. So first हम कर रहे हैं by elimination of arbitrary constants. So इसको मैं skip कर रही हूँ, हम सीधा example करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, फिर दोबारा इस पे आते हैं हम. लेट अस डिस्कस फर्स्ट एग्जाम्पल. सो देखो z दिया हुआ है आपको ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो इसमें देखो x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, z इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड a एंड b आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. सो आपने क्या करना है, इसमें से a और b को एलिमिनेट करना है. तो हमने क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करोगे तो a आंसर आएगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो b आंसर आएगा. तो आपको a भी तो एलिमिनेट करने थे. तो यहाँ से देखो क्लियरली a की वैल्यू आ गई p और b की वैल्यू आ गई q. ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन गया z इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू. ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आना है. सो यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आना है. सो दैट इज़ मिस प्रिंटिंग होगी. तो क्या यहाँ से a इज़ इक्वल टू स्मॉल p एंड b इज़ इक्वल टू स्मॉल q उसमें पुट कर दिया. तो फर्स्ट पार्ट यही है जिसमें आपने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है. सेकंड देखो, अगेन a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, तो जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x इसका,
सो ये आ रहा है a माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स दैट इज़ a प्लस साइन एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये आ गया। तो देखो b तो इसमें से अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो a भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो कई बार क्या होता है, जब आप एलिमिनेट कर रहे होते हो कॉन्स्टेंट्स को, तो आपके डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है। देन थर्ड पार्ट इज़ दिस, अगेन इसमें जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ए ई रेज टू पावर वाई आ रहा है, ठीक है, एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से ए एक्स ई रेज टू पावर वाई प्लस हाफ ए स्क्वायर 2 टाइम्स ई रेज टू पावर वाई। तो ये बन गई p की वैल्यू आ गई ए ई रेज टू पावर वाई और q की वैल्यू आ गई ये, तो b तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से a को एलिमिनेट करने के लिए देखो, अगर मैं ए ई रेज टू पावर वाई की वैल्यू p इसमें पुट कर दूँ तो आई एम गेटिंग q इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स पी। सो आपका a भी एलिमिनेट हो गया एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे ही बाकी एग्जांपल्स करने से पहले इसमें फर्स्ट पार्ट में यही सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास एक फंक्शन होता है एक्स वाई जेड और ए बी में, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड फिर जो भी आपके ए बी होते हैं वो आपने इन तीनों रिलेशंस में से एलिमिनेट करके एक आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। नाउ these notes 1, 2, 3 are very important. They are saying if there are more arbitrary constants than the number of independent variables. जैसे कि यहाँ पे देखो आपके पास z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं a b। सो थर्ड नोट है ये, इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पे, then the elimination of constants usually shall give rise to one differential equation of first order. तो आपके पास एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जनरली एंड दैट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओनली। ऑन द अदर हैंड, इफ़ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कि सपोज करो आपके पास 3 कॉन्स्टेंट्स होते लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 ही थे, सो इस केस में एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजुअली शैल गिव राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर देन 1। तो इस केस में आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो कई बार सेकेंड डिग्री की भी आ सकती है। Then if there are less arbitrary constants than the number of independent variables, जैसे कि सपोज आपके पास a और b इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, सो इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स यूजुअली शैल गिव राइज टू मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जैसे कि देखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, तो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं लेकिन b एक ही कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो यू आर गेटिंग 2 डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स वॉज लेस देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन देखो, अब आपके पास अल्फ़ा बीटा 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है एंड एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो वही आप करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई किया इन्होंने और फिर उनको डिवाइड कर दिया। सो डिवाइड करने से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई p ओवर q, ये अल्फ़ा की वैल्यू आप क्या करोगे अब, बट यहाँ पे बीटा भी आ रहा है ना, सो ये देखो z प्लस अल्फ़ा ये था, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये बन गया p ओवर q इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई, अभी अल्फ़ा की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पुट करूँगी तब भी बीटा रह जाएगा, यहाँ पे भी बीटा रह रहा है और यहाँ पे भी बीटा रह रहा है। सो इसी वजह से इन्हें क्या करना पड़ा, इसका डबल डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। सो फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ गया, अगेन फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। सो इन दोनों को डिवाइड करने से अल्फ़ा भी एलिमिनेट हो गया। सो यू आर गेटिंग, इसको बोलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y को बोलते हैं s, और ये है
Q. So S over Q is equal to R over P. तो आपके पास आ गया PS इज इक्वल टू QR इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वहाँ पे यूजुअली वर्ड लिखा हुआ था आपके पास नोट में. तो हालांकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स भी दो हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं, बट स्टिल आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो सेकेंड ऑर्डर की आई है. देन इसका सेकेंड पार्ट देखो. वी आर गिवन z इज इक्वल टू दिस. इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू y करने से ये आ गया. अब इसी को आप अगर विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा. तो इन्होंने क्या किया, इसी को पहले विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा किया और इसको ही विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा डिफ्रेंशिएट किया. सो ये जब दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया इनके पास. एंड दिस इज़ इक्वल टू कर्ली जेड बाई कर्ली वाई. तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई वो बन गई आर इज़ इक्वल टू क्यू. सो बेसिकली आपका मोटिव क्या है इसमें, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है आपने बाय एनी वे, एंड यू कैन गेट डिफरेंट रिलेशंस. ऐसे ही थर्ड पार्ट है z is equal to a e raised to power bx cos by. सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया एंड विद रिस्पेक्ट टू y किया एंड इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड करके ये आ गया आपके पास. सो यहाँ से कर्ली z बाई कर्ली x इज़ इक्वल टू ये देखो यहाँ पे ये b z के इक्वल आ रहा था. ठीक है. सो हमारे पास आ गया p इज़ इक्वल टू बी जेड. तो b की वैल्यू आ गई. ये b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. सो यहाँ पे पुट करने से दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे ही जो ये पिछले वाला एग्जांपल था ना, सॉरी ये वाला सेकंड पार्ट, सो ये सेकंड पार्ट में भी अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ये रिलेशन आता p ओवर q इज़ इक्वल टू दिस. एंड सेकेंडली यहाँ से मैं लिख सकती हूँ q इज़ इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर जेड. तो b की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस q ओवर z. आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओनली. ठीक है. बाकी जैसे इन्होंने किया है वैसे वो भी ठीक है. फिर थर्ड पार्ट में हमने कर लिया डिस्कस. फिर थर्ड पार्ट में इन्होंने देखो और भी एक और तरीके से किया है, तो उससे इनके पास सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री नॉन लीनियर डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है. तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा पर्पस सिर्फ क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया. देन फोर्थ पार्ट है. अब फोर्थ पार्ट में देखो आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. तो आपके पास इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो दो हैं एक्स और वाई, लेकिन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं 3. तो इसमें तो डेफिनेटली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनेगा. सो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो ये आ गया इनके पास. फिर दोबारा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये आ गया. अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो ये बन गया सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. और यहाँ पे भी आप जब आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड बाई एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स दैट इज़ पी. सो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ माइनस जेड पी ओवर एक्स तो एलिमिनेट हो गया आपका कांस्टेंट, एंड हेंस दैट विल गिव यू अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली यहाँ से इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करके सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू और इसको डिवाइड करके सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू. So you will see that they are getting two differential equations. शायद ऑर्डर आगे पीछे हो गया. सो ये हम कर रहे थे डिस्कस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू. ये देखो इन्होंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है
सो ये सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू और ये सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर की वैल्यू, जब ये नंबर 4 और नंबर 5 में पुट कर रहे हैं तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई और एक ये बन गई. सो दस वी आर गेटिंग 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस. So here we get more than one differential equation since number of arbitrary constants was more than the number of independent variables. Now third example, find partial differential equation of planes having equal xy intercept. तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1. बट सिंस दे आर सेइंग x एंड y इंटरसेप्ट्स आर सेम, सो x ओवर a प्लस वाई ओवर b प्लस z ओवर x ओवर a प्लस वाई ओवर a इंटरसेप्ट सेम हो गए प्लस z ओवर b इज इक्वल टू 1. तो अब दो कॉन्स्टेंट्स हैं और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. सो यहाँ से सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल ली. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. तो वी आर सिंपली गेटिंग p इज इक्वल टू q. नेक्स्ट है फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग अ कांस्टेंट डिस्टेंस k फ्रॉम द ओरिजिन. तो आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हम क्या लिखते हैं, हमारे पास होती है Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d, वेयर d इज़ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन k दिया हुआ है. सो यानी कि k जो है वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में. सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हुआ k आपके पास, ठीक है. सो Lmn कांस्टेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें रिलेशन पता है L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है. इसका मतलब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, सो बेसिकली आई एम हैविंग 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स L एंड m एंड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y. सो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई. Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू k. इसको डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. तो L की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ n एंड m की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ n. फिर फर्दर क्योंकि हमें ये रिलेशन पता, ये रिलेशन सब्सटीट्यूट करके n की प्रॉपर वैल्यू हमने फाइंड कर ली pq की टर्म्स में. सो यहाँ से मुझे मिल गया l और m. ये l और m की वैल्यूज़ जब आप इस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दोगे तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. So now remember k is not an arbitrary constant because k was given to us in the question, so it is a proper constant. Next है fifth example, find differential equation of all spheres A having centers on z axis and on x axis. So ये दो different parts हैं. First part में we have to find differential equation of all spheres having centers on z axis. अब अगर सेंटर ऑन z एक्सिस है तो आपको पता है z एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो 0 0 c टाइप का इन्होंने ले लिया एंड लेट r बी द रेडियस. सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन गई ये. अब इसमें c एंड r आर 2 कॉन्स्टेंट्स एंड x एंड y आर 2 वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. सो यहाँ से z माइनस सी की एक वैल्यू आ गई और यहाँ से z माइनस सी की वैल्यू आ गई. दोनों को इक्वेट करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली जब x एक्सिस पे है सेंटर तो सेंटर ले लिया a0 0. सो इसको सॉल्व करोगे आप सेम वही विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे एंड विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करोगे. सो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया तो a अपने आप ही एलिमिनेट हो गया. सो यानी कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है दैट इज़ गिविंग अस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया तो a अपने आप ही. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. दूसरा इन्होंने क्या किया है, कर्ली z बाय कर्ली x. ओके दे आर सेइंग इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें अगर दोबारा. तो आप कोशिश यही क्या करो कि अगर आपके पास क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, सो ट्राई करो कि आप फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल पाओ. बाकी इन्होंने इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उससे इनको एक और डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है. सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस.
आर्बिट्ररी फंक्शंस में क्या होगा, अगेन आई विल से कि पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे. सो ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन. सो ये देखो, ये आपको जो आर्बिट्ररी फंक्शन दिया है वो कैसा है, z इज़ अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर. तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. सो कर्ली z बाई कर्ली x, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आ गया 2x. ऐसे ही इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2y स्क्वायर का साथ में 4y इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो एफ डैश कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग p ओवर q इज इक्वल टू x ओवर 2y. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सिमिलरली अब इसमें एक ही फंक्शन था, अब सेकंड में देखो इसमें दो फंक्शंस हैं, एफ एंड जी आर आर्बिट्ररी फंक्शंस. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करेंगे. पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सो कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इंटू एफ डैश एक्स ओवर वाई इंटू एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई आ गया. ऐसे ही जी डैश एक्स वाई इंटू एक्स वाई का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई आ गया. सिमिलरली इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो 1x ओवर वाई का साथ में माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर आ गया एंड एक्स वाई का x आ गया. ठीक है, अब हमने इन दोनों में से एलिमिनेट करना है एफ डैश और जी डैश को, जो कि अभी नहीं लग रहा है एलिमिनेट होता हुआ. सो अब क्या किया, फिर से इसको विद रिस्पेक्ट टू x और इसको विद रिस्पेक्ट टू y. सो कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ पे तो 1 बाई वाई एज इट इज़ एफ डबल डैश एक्स ओवर वाई इंटू 1 ओवर वाई. तो ये बन गया 1 बाई वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर जी डबल डैश एक्स वाई. सिमिलरली जब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे सो ये बन जाएगा अगेन माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर. सो माइनस एक्स बाई वाई 4, इन्होंने माइनस एक्स बाहर लेके इस पर यू इंटू वी रूल लगाया. सो 1 बाई वाई स्क्वायर का माइनस 2 बाई वाई क्यूब इंटू एफ डैश एज इट इज़ प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर एज इट इज़ इंटू एफ डबल डैश एक्स ओवर वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर. और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स वाई. आप क्या कर रहे हैं, नंबर 4 को इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया. सो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट किया सॉरी माइनस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर. तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई कैंसिल हो गई ये भी. देन आई एम गेटिंग इसको एक्स स्क्वायर से किया ना तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर एंड ये वाली टर्म को जब आप वाई स्क्वायर से करोगे तो ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी. सो वी आर लेफ्ट विद दिस, ये बन गया 2x ओवर वाई एफ डैश ऑफ x ओवर वाई. अब इसके लिए क्या करेंगे, अगेन इन दोनों को एफ डैश की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यानी कि फिर जी डैश एलिमिनेट कर दें इनमें से. सो अगेन इसको x और इसको y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो आई एम गेटिंग दिस. सो अब इन दोनों में से एफ डैश को एलिमिनेट करना है तो ये इक्वली आ गए दोनों. सो इन दोनों को इक्वेट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, इनकी थोड़ी बहुत ही ट्रिक्स यूज़ होती हैं. बाकी विद प्रैक्टिस जैसे कि अब आपको समझ आई गया. इसमें देखो इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डेरिवेटिव निकाला, पी एंड क्यू की वैल्यू आ गई, फिर उन्हीं को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करके आर और टी की वैल्यू निकाल ली. फिर क्या किया, इन दोनों में से जी डैश को एलिमिनेट किया और इन दोनों में से जी डबल डैश को एलिमिनेट किया, जिससे एफ डबल डैश अपने आप एलिमिनेट हो गया. सो एफ डैश में जो वैल्यू आई थी इन दोनों में से जी डैश एलिमिनेट करके वहाँ से भी एफ डैश की वैल्यू आ जानी थी. तो ये बाई चांस बिल्कुल ही इक्वल आ रहे हैं तो डायरेक्टली बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, z इज़ इक्वल टू एफ. अगेन इसमें दो आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं. सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया ये आ गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो ये आ गया. ठीक है, सो लग रहा है कुछ अभी हो सकता है, नहीं लग रहा. सो अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया. आप क्या करें,
ये है जी डबल डैश और ये है जी डबल डैश। लेकिन इसमें ये देखो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर जो है उसमें एफ डैश भी आ रहा है, जी डैश भी आ रहा है, एफ डबल डैश भी आ रहा है, जी डबल डैश भी आ रहा है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एफ डबल डैश और जी डबल डैश आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस वाली टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई किया। एक्स से मल्टीप्लाई करने से ये जो टर्म है एफ डैश और जी डैश वाली, ये आपकी कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स के इक्वल आ गई, और ये वाली टर्म कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर के इक्वल आ रही है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अगेन इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर दिया। ठीक है, सो देखो इन दोनों से एफ डैश एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं वो एफ डबल डैश एक्स है। ओके, क्या करना चाह रहे हैं ये, देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई करती तो ये जी डबल डैश में वाई में आ जाता, तो हम कुछ भी कॉमन एलिमिनेट ना कर पाते। इसीलिए इन्होंने इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई ना करके इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अब आपने कोशिश करनी है कि ये आपके पास 5 इक्वेशंस हैं, इन पांचों में से आपने एफ जी एफ डैश जी डैश एफ डबल डैश जी डैश जो मर्जी जैसे मर्जी एलिमिनेट करके रिलेशन फाइंड करना है। सो इनसे मुझे कुछ रिलेशन नहीं मिला कि ये किसी तरह से एलिमिनेट हो जाए, तो इन्होंने यहाँ पे कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर भी फाइंड किया है। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करेंगे तो कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स टाइम्स जी डबल डैश वाई। ठीक है, तो अब आपके पास 6 रिलेशंस हो गए ये। सो उसके बाद देखो ये क्या कर रहे हैं, ये लेके चले एक्स टाइम्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई टाइम्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई को। सो एक्स टाइम्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई टाइम्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई करने से ये बन गया। अब ओके, ये देखो एफ एक्स और जी वाई वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लिया और एफ डैश जी डैश वाले को कर लिया, तो ये जेड आ गया था और ये आपका कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई बन गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद देखो जो एग्जांपल नंबर 2 है, अब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज फंक्शन ऑफ जी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इसमें अब उन्होंने हमें बोला वी हैव टू एलिमिनेट आर्बिट्ररी फंक्शंस, तो हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं सोचना, हमने सिर्फ जी को एलिमिनेट करना है। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस गामा पी इज इक्वल टू जी डैश इंटू 2x प्लस 2zp। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y करने से ये बना। सो ये इन्होंने इसको ठीक करके लिख दिया। अब क्या हो रहा है, जब इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने से g डैश ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया ये अल्फ़ा प्लस गामा p ओवर बीटा प्लस गामा q इज इक्वल टू x प्लस पी जेड ओवर y प्लस क्यू जेड। सो देखो आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेट हो गया। सो ये इन्होंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है कि p का कोफिशिएंट्स अलग, q के अलग और बाकी टर्म्स अलग। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली, क्योंकि आर्बिट्ररी फंक्शन एलिमिनेट करना था हमने सिर्फ। अब ऐसे ही आते हैं सेकंड पार्ट में। नाउ सेकंड पार्ट में f itself इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस। सो हमने क्या किया, एक को u पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और z माइनस एक्स वाई को v पुट कर दिया, यानी कि अब हमारे पास गिवन है f ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0। सो इसका डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू u तो क्या आएगा, कर्ली f बाई कर्ली u इंटू कर्ली u बाई कर्ली x प्लस कर्ली u बाई कर्ली z इंटू कर्ली z बाई कर्ली x। देखो आप कर क्या रहे हो, f ऑफ u कॉमा v का डेरिवेटिव लेना है आपने। आपके पास है
एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0। सो इसका डेरिवेटिव कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स करेंगे जब हम, बट एफ इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो साथ में कर्ली एक्स बाय कर्ली यू करना पड़ेगा हमें। अब क्या हुआ, एक मिनट, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी, सो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। सो जब मैं कर्ली एफ बाय कर्ली यू लिखूंगी विद रिस्पेक्ट टू यू करूँगी, बट यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड ऑल्सो। देखो मैंने यू किसको पुट किया है, यू मैंने पुट किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है ये, और वी मैंने पुट किया है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो यहाँ पे जब हम कर्ली एफ बाय कर्ली यू लेंगे तो फर्दर u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एज वेल एज z। सो आपके पास आएगा कर्ली u बाय कर्ली x प्लस कर्ली u बाय कर्ली z इंटू कर्ली z बाय कर्ली x। ऐसे ही जब v का लेंगे तो साथ में ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे फिर कर्ली f बाय कर्ली u लिया, साथ में u इज़ अ फंक्शन ऑफ y एंड z एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ y एंड z। अब कर्ली u बाय कर्ली x, कर्ली u बाय कर्ली y एंड कर्ली u बाय कर्ली z, ऐसे ही कर्ली v बाय कर्ली x, कर्ली v बाय कर्ली y एंड कर्ली v बाय कर्ली z। आपने जहाँ पे u एंड v सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल लोगे और इन दोनों रिलेशंस में पुट कर दोगे। सो ये आपके पास आ गया आंसर। अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ से कर्ली एफ बाय कर्ली यू ओवर कर्ली एफ बाय कर्ली वी की वैल्यू और यहाँ से वैल्यू, और फिर दोनों को इक्वेट कर दिया। सो इक्वेट करने से दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन नेक्स्ट है ये, अगेन इसमें एफ़ को एलिमिनेट करना है। सो साइन जेड की ये वैल्यू आ गई, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन रहा है कॉस जेड इंटू कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स साइन वाई एज इट इज़, एफ डैश साइन एक्स ओवर साइन वाई इंटू, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर साइन वाई एज इट इज़ आ जाएगा, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। सो इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करके लिखा, साइन वाई से साइन वाई एक कैंसिल हो रहा है ये वाला, सो आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। सिमिलरली इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करने से ये आ गया आपके पास कॉस जेड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कॉस वाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस वाई प्लस, ये आपके पास ये है ना, ये है आपका फंक्शन साइन, आपके पास था साइन वाई इंटू एफ ऑफ साइन एक्स ओवर कॉस वाई। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू एफ एज इट इज़, नेक्स्ट टाइम में साइन वाई एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश इंटू साइन एक्स ओवर साइन वाई का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा -1 बाय साइन वाई की होल स्क्वायर इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। सो ये बन गया आपके पास कॉस जेड इंटू क्यू इज़ इक्वल टू कॉस वाई, एफ ऑफ साइन एक्स ओवर साइन वाई की वैल्यू पुट कर दी उन्होंने, साइन जेड ओवर साइन वाई प्लस साइन वाई एज इट इज़, और ये एफ डैश की वैल्यू कहाँ से पुट की है, जो अभी हमने पीछे पी की वैल्यू निकाली थी तो वहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो भी आ रही थी वहाँ से आप देख लेना, इनटू ये आया था इसका डेरिवेटिव। सो इसमें से एफ एफ डैश सब कुछ एलिमिनेट हो गया, पी एंड क्यू के कोफिशिएंट्स को अलग अलग करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कोन विद वर्टेक्स एट अल्फा बीटा गामा एंड हैविंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस। सो अगेन इसमें क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा ओवर z माइनस गामा को u पुट कर देंगे एंड y माइनस बीटा ओवर z माइनस गामा को v पुट कर देंगे। सो यहाँ से आप कर्ली z बाय कर्ली x, क्या किया इन्होंने, इसको विद रिस्पेक्ट टू इसको u पुट किया था ना, सो
देखो यहाँ से मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, कर्ली यू बाय कर्ली एक्स आना था यहाँ पे। सो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स जब आप करोगे, ये निकाला इन्होंने कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। सो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स देखो 1/z माइनस काम आएगा, कर्ली यू बाय कर्ली वाई 0 आएगा, एंड कर्ली यू बाय कर्ली z आएगा -1/z माइनस गामा की होल स्क्वायर एंड x माइनस अल्फा एज इट इज़। ऐसे ही यहाँ से कर्ली v बाय कर्ली x विल बी इक्वल टू 0, कर्ली v बाय कर्ली y विल बी 1/z माइनस गामा, एंड कर्ली v बाय कर्ली z इज इक्वल टू दिस। नाउ अगेन f ऑफ u कॉमा v इज़ 0, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y ये आप बेशक याद कर लो, एंड ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी आप इन दोनों में सब्सटीट्यूट कर दोगे। सो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो यू आर गेटिंग नंबर 3 एंड नंबर 4। सो अगेन देखो वही नंबर 3 में इन्होंने क्या किया है, कर्ली एफ बाई कर्ली यू को एक साइड और कर्ली एफ बाई कर्ली वी को दूसरी साइड। ऐसे ही नंबर 4 में भी कर्ली एफ बाई कर्ली यू, मिस प्रिंटिंग है अगेन, यहाँ पे कर्ली एफ बाई कर्ली यू आना है, यहाँ पे वी नहीं आना, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन को यहाँ लिखा एंड ये वाली इक्वेशन को यहाँ लिखा है, यहाँ पे कर्ली एफ बाई कर्ली यू है। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे नंबर 3 एंड नंबर 5 को, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। सो यू आर लेफ्ट विद दिस। फिर इसको सिंप्लीफाई करके पी और क्यू के कोफिशिएंट्स अलग अलग करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें भी यही करोगे, इसको u और इसको v पुट किया, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। एफ ऑफ u कॉमा वी 0 बना था, ये याद रख लो रिलेशंस। ये सारी वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करने के बाद अगेन आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू u एक साइड आ रहा है और v दूसरी साइड आ रहा है, तो जब आप उनको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सेकंड में भी यही है, u को x बाई जेड एंड v को y बाई जेड पुट किया, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x वाई जेड फाइंड कर लिए एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x वाई एंड z फाइंड कर लिए। देन ये दोनों रिलेशंस, इनमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सब्सटीट्यूट करके यस ये दोनों जो फाइनली आ रही हैं उसमें कर्ली एफ बाई कर्ली यू एक साइड है एंड कर्ली एफ बाई कर्ली वी दूसरी साइड, सो दैट जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी। सो वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इनको सिंप्लीफाई कर देना है, पी के कोफिशिएंट अलग एंड क्यू के कोफिशिएंट अलग, एंड हेंस यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपकी 4A एंड 4B दो एक्सरसाइजेज हैं, आई विल बी पोस्टिंग इन द ग्रुप, सो वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अपने लिए, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।